Everyone, good afternoon. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes RI in Nugapur. We have told many times again we are going to say you one word which is very important for you for your future. We are working for 10th school, 10th boys. There are many students who are speaking good English but they want to read literature with us. That is why we are going to teach them literature because without literature no one can do anything else. Suppose that you are good and very good in grammar but you don't know literature, so you cannot pass any type of exam like as William Shakespeare and Robert Frost or John Glassworthy, John Milton's and you can take name of William Wordsworth. There are a lot of poems of them and we are going to teach you properly. And you are excited to know what any of poems, so just you can join with us. Yesterday I had taught one poem name was The Dust of Snow and today we are going to teach you Fire and Ice. So if you do not know about Dust of Snow, so you can go there and you can check my video playlist. I have given this playlist only for you. I had thought there only for you because I know your exam is near you and you are excited to learn good things. I have spoken everything in Hindi and you can learn this meaning very good. And again we are going to teach you in Hindi. Right now we are speaking English but during teachings I use Hindi because I know the explanation should be in English Hindi so student can understand whatever I want to say. So don't worry, चिंता मत करिए ज़्यादा, हम हिंदी में ही बोलते हैं और हमें हिंदी पसंद है क्योंकि हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। अंग्रेजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग टीचर किसके हैं? इंग्लिश के हैं। किसके टीचर हैं? इंग्लिश के हैं। सब बोलो किसके टीचर हैं? इंग्लिश के। अब इंग्लिश टीचर हैं तो हमारा काम क्या है? बोलना इंग्लिश बोलना है। क्या बोलना है? इंग्लिश। लेकिन मजबूरी हमारी है, तो हम तो चाहते हैं हमेशा हिंदी बोले बच्चों के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। लेट्स कम एंड रीड फायर एंड आइस। चलिए पढ़ते हैं फायर और आइस को और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कविता लिखा हुआ है। पहले मैंने एक पोम पढ़ाया था जो कल पढ़ाया था, मैंने अभी लिखा है बताने के लिए तो उसका प्रचार भी हो जाए। अब प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए कक्षा 10 प्ले लिस्ट में मैंने डस्ट ऑफ द स्नो पढ़ाया जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये फायर एंड आइस। जो कल का पोम था वो क्या सिखाया था आपने देखा होगा, तो कल का पोम आपको सिंबलाइज किया था कि सिंबलाइज क्या होता है, और आज जो पोम पढ़ने वाला हूँ वो भी क्या कर रहा है? सिंबलाइज ही करवाएगा आपको। सिंबलाइज मतलब उसका प्रतीक क्या होगा। यहाँ पे दो मीनिंग होगा। जैसे कभी जाएंगे तो हमारे पास आयरोनी होता है, अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे होता है पोएटिक डिवाइस। क्या होता है? पोएटिक डिवाइस होता है, वहाँ पे आयरोनी होगा। आयरोनी हमको कई प्रकार के ज्ञान मिलते हैं, जैसे हमारा आयरोनी सही है गलत है क्या है, तो पूरा हम लोग पढ़ते हैं। लिटरली डिवाइस भी पढ़ते हैं, तो लिटरली डिवाइस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको पोएटिक डिवाइस मिलेगा। अभी कोई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जो 10th में 12th में होते हैं कि लिटरली डिवाइस में पोएटिक डिवाइस अंतर क्या होता है। जैसे क्रिटिकल कमेंट जानते हो ना इंग्लिश में, तो क्रिटिकल कमेंट से निकाल के हम लोग इसको बस निकालते हैं और समझ जाते हैं कि पोम का अपना रोल क्या होता है। तो आज हमारा जो पोम है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, इन फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट Frost. Again we can say you can read Dust of Snow which I had taught yesterday and today we have teach Fire and Ice. So you are ready to read? Yes sir. Okay, just come. So we have told again we are saying we are in offline class and we are trying to teach you online because it is not possible, so it is a recorded video not online, because but we will not edit any video, direct I will upload because I want to very clear and transparent for my education. There are many students who are going to watch to us. If they will feel we have edited, so they will not trust over us very well. So we are not going to edit many things. Just we are going to speak very properly in front of you, and we want to tell to all students who are going to watch to us, so you can feel only one word. This is not any type of edited. Everything has been given very transparent for your best education. So let's start and know about the fire and ice. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मैं बताया था इनके बारे में, आज ज्यादा नहीं बात करूंगा, डायरेक्ट चैप्टर पे आता हूँ। ठीक है, वैसे एक बात और बता दिया जाए, फायर एंड आइस में कोई भी कक्षा 10 का 12 का जो इंग्लिश होता है ना, लिटरेचर से पूरा ताल्लुकात करता है। वाई? क्योंकि कोई भी बंदा अगर इंग्लिश टीचर बनना चाहता होगा लाइफ में ना, अगर ये सब नहीं बता पाता ना तो बेकार भी होता है। अभी कल का पोम का बता रहा था, एक कौवा था, एक हेमलॉक ट्री था, आपको याद होगा ना? वो कल का पोम जो हमने कल पढ़ाया था उसमें क्या ज्ञान मिला था कि जो पोम था उस सिखान बताया था कि कभी भी किसी बुरा नहीं मानना चाहिए और हमें अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो कोई कहता है रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दे रुक जाओ, ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कौवा सबसे गंदा पक्षी होता है और पेड़ों से गंदा पेड़ का होता है हेमलॉक, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। हेमलॉक से प्यारा पक्षी होता है और कौवा सॉरी हेमलॉक से प्यारा पौधा होता है और अपना कौवा बहुत प्यारा पक्षी होता है। तो आप किसी से नफरत ना करके प्रेम की बात बोलिए कि प्रेम में ज्यादा फायदा है rather than नफरत का। वैसे ही यहाँ दो नाम लेंगे, पहला नाम है फायर का, दूसरा नाम है आइस का। चैप्टर का नाम ही है फायर एंड आइस। चलिए वन बाय वन समझते हैं।
Some say in the world will end the fire. कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होगा आग से. Some say in the world will end. तुम लोग को देखने दोगे मुझे. Some say in the world will end in the fire. कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होगा किसमें? आग में. किससे खत्म होगा? आग से खत्म होगा. Some say in the ice. तो कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होगी बर्फ से, पानी से, आइस से. From what I have tasted of desire. कि तुम जानते हो हमारी इच्छा क्या है, हमने महसूस क्या किया है. I hold with those who favor fire. मैंने उन लोगों को देखा है, ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी आग के पक्ष में हैं. कि दुनिया खत्म किससे होगी? आग से होगी. किससे होगी? आग से. अब नीचे आएंगे, बताएं कवि बताना चाहता है यहाँ दो नाम है, दोनों प्रकृति के ऊपर है. किस पे ऊपर है? प्रकृति के ऊपर. अब समझाते हैं यहाँ मतलब क्या है. देखो फायर का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग. क्या होता है? ह्यूमन. जैसे आज इंसान की इच्छा जानते हो आग की तरफ बढ़ रही है. कभी ये नहीं कहना चाहता है कि दुनिया आग से जल के मर जाएगी. कभी ये कहता है इंसान अपनी डिजायर से मर जाएगा, अपनी इच्छाओं से मर जाएगा. आज बड़े बड़े मकान बनाने के लिए लोग क्या काट दे रहे हैं? पौधे काट दे रहे हैं. अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए दूसरों को मार देते. जैसे आज का कोई बकरी खा रहा है, कोई पक्षी खा ले रहा है, कोई गाय भैंस खा ले रहा है. आप देखो प्रकृति से ही खेल रहे हैं लोग ना. अभी सुनो मटर बन रहा है मेरे यहाँ, सुनेंगे ना. मटर किससे बनता है? कोई पशु होता है, पक्षी होता है. कौन मारता है इनको? कोई ना कोई इंसान ही मारता है ना. यहाँ तो लोग बगुला भी चबा जा रहे हैं, जो व्हाइट कलर का बगुला होता है. कैसे कमाते हैं? उनको क्या बोलोगे आप? ह्यूमन बीइंग. तो इंसान अपनी इच्छाओं से मर जाएगा. कोई डायरेक्ट आग नहीं लग जाएगी. कभी कहने तात्पर्य कोई डायरेक्ट आग धंधा नहीं मरेगा, कोई मर जाएगा. कोई किससे मर जाएगा? अपनी इच्छाओं से. कभी का पहले लाइन में कहने मतलब है कि जब इंसान कहते हैं कि इंसान आग से मरेगा, तो आग का तात्पर्य ये नहीं है कि इंसान खुद से मरेगा. इंसान में डिजायर से मर जाएगा. वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि दारू पीने पे ध्यान दे रहा है. जो दारू पिएगा उसका जो भगवान का दिया हुआ माइंड है क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा. जैसे हर एक इंसान को माइंड अच्छा मिलता है. कोई व्यक्ति होगा उसको कैसा माइंड मिलता है? भगवान का अच्छा मिलता है, लेकिन वो संघर्ष बिगाड़ लेता है. जैसे देयर इज अ प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश. 75 बार बोलो फिर बोल देता हूँ. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. एक व्यक्ति में संगत से, मान लीजिए जब मैं 12 में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, 12 से ही. अब 12 से पढ़ाया, बीए मैं बीएड तो करता चला गया. आज पढ़ाने का अपना एक नशा हो गया है. नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा. और पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ कर लेता हूँ धीरे धीरे. अब कोई डर नहीं, लाज नहीं, शर्म नहीं, हर एक चीज समझा लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया. और क्या हो गया, मैं समझ गया ह्यूमन बीइंग मतलब मानव की इच्छा. पहला लाइन क्या बोलता है? मानव की इच्छा. आप फायर मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? आग मत समझना. क्या समझोगे आप? मानव की इच्छा. तो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आगे ना. दूसरा लाइन चलते हैं, दूसरा लाइन समझाते हैं हम. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. अब देखो यहाँ लाइन है पेरिस. तो पेरिस मींस क्या होता है? तो लिख लेना PERIS. पेरिस तो होता है खत्म. क्या होता है? खत्म करना. पेरिस क्या होता है? खत्म करना. अब देखो तो नहीं, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन दोनों खत्म करना पड़ेगा. आइस को भी और सुना हो, ये दोनों खत्म कर देंगे. अगर कभी आग ज्यादा हो जाए तो भी इंसान बढ़ जाता है, और पानी ज्यादा हो जाए तो इंसान दब के मर जाता है. रूल तो यही है. ये दोनों प्रकृति का रूल है. और जो भी व्यक्ति प्रकृति से लड़ा, खत्म. जैसे एक कहावत है कि भाई लोमड़ी कितना चालाक हो, शेर से नहीं लड़ता है. कि राजा राजा होगा. रूल तो यही कहता है. जैसे आप गुस्सा में आ गए, ईगो आ गए, एटीट्यूड आ गया, आपको लगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नहीं कर सकते हो. अब आग से लड़ोगे, जला के भस्म कर देगा. पानी से लड़ोगे, कूद के देखोगे समुद्र में. जैसे कोई लोग बोले हमको तैरने नहीं आता है. हाँ, नदी पोखरी में तैर लो तो सबको तैरने नहीं आता है. बट रियल लाइफ में तैरने की बात हो जाए तो तैर पाओगे? जैसे कोई भेज दे आपको, जाओ रियल लाइफ में तैर के आओ, तो यहाँ पे जो दूसरी दुनिया होगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अपनी जनसंख्या, अपनी एक स्टाइल. आप क्या हो गए? ह्यूमन बीइंग. तो आइस क्या हो गई? अपनी एक बढ़ती पॉपुलेशन. जैसे समुद्र का तह नहीं लगा सकते हो. जैसे आग एक बार कमजोर हो जाता है, आग को बुझाया जा सकता है, कब्जा में कर सकते हैं, लेकिन पानी कब्जा नहीं कर सकते. जैसे आज का आप जानते हो, अगर आप भूगोल पढ़ते हो, कोई इतना ज्ञान होगा, जानते रहिएगा कि भारत को सॉरी वर्ल्ड को 4 भागों में बांटा है. वर्ल्ड को 3 भागों में पानी है सर. ये भागों में एक में क्या है? ह्यूमन बीइंग है. अगर तीनों का उफान मार तो ह्यूमन बीइंग का हाल होगा. बताओ तो देखो इधर सफाया कि तीनों मजबूती होता है. तो दूसरा लाइन बोलता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट. आई नो इनफ ऑफ हेट. नफरत की भी एक सीमा होती है. जैसे आइस क्या है यहाँ पे? आइस क्या है यहाँ पे? नफरत है. आइस क्या है यहाँ पे? अरे समझो ध्यान से. फायर क्या है?
ह्यूमन बीइंग। आइस क्या है? हेट है। क्या है? हेट है। कविता में ही भाई पूरा सारांश है, निकालने वाले के लिए बुद्धि चाहिए। देखो साफ साफ लिखा है डिजायर, डिजायर मतलब ह्यूमन बीइंग। हेट लिखा है, हेट मींस क्या होता है? नफरत होता है। इंसान अपने नफरत से मर जा रहे हैं बहुत लोग। अपना विकास देखो तो सिर्फ देख देख जल रहे हैं, और जलते जलते क्या हो जा रहे हैं? रैली हम निकाले, लोगों को लग रहा है टीचर है वाली है। बताओ तो आई एम आस्किंग विद यू व्हाट ए भाई, अरे भाई आई एम टीचर ना टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? टेल मी। डिस्ट्रैक्शन मतलब खत्म करना। मुझे तो लगता है ना आपका नफरत आपको बर्बाद कर देगा। किसी से नफरत करे बढ़िया से प्रेम करके ज्ञान ले लो। फिर तुम मुझसे नफरत करते हो, क्या ले सकते हो? कुछ नहीं, बल्कि प्रेम कर लो, ज्ञान पा जाओगे। काहे को? जो ज्ञान मेरे पास है, ना ज्ञान पाया कुछ तो नॉलेज तो पा जाओगे, कुछ नहीं साम पा जाओगे, दाम पा जाओगे, दंडन पा जाओगे, भेदी पाओगे, कुछ तो पाओगे चारों में से। लेकिन तुम मुझसे नफरत कर लिए, कुछ नहीं पाए। जैसे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण ने नफरत कर लिया था। अरे मूर्ख, नहीं समझता तू, मौत नजदीक तेरे है। तो समझ, आइस ऑफ फायर क्या कर रहा है? इज आल्सो ग्रेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब हाँ जिंदगी को बर्बाद कर देगा। सिर्फ और सिर्फ आपका नफरत हम क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। एंड वुड सफिस, सफिस मतलब क्या होता है जानते हो? यस यू डबल एफ आई सी। सफिस मींस क्या होता है? पर्याप्त। पता नहीं ट्रिपल क्यों डाल दूं। सफिस मींस क्या होता है? पर्याप्त होता है, हद से ज्यादा। और मुझे लगता है कभी क्या चाहता है? मुझे लगता है ये दुनिया बर्बाद करने के लिए इंसान की इच्छा और उसकी नफरत काफी है। कोई आइस और किसी आग की जरूरत नहीं है। इंसान खुद को बर्बाद करने में सक्षम है। मैंने बोला किसी लड़के से पढ़ लो तो उसको बुरा लग गया। मैंने कहा कुछ दारू पी लो तो हंसने लगा। तो आप समझ लो कि पढ़ाई उसको बुरा लग रही है, दारू अच्छा लग रहा है, यानी दारू उसकी इच्छा में आ गया है। यानी उसका जो फायर है वो क्या है? उसका दारू पीना। दूसरी बात मैंने बोला उसको कि क्या है यार, मैं ज्यादा बुलेट ले लें, तू चिढ़ गया मुझसे, तुझे नफरत है, उसका आइस है। चलिए धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। कभी यहाँ कहना चाहता है आपको ये लाइन कि हमारे मानव प्रवृत्ति, हमारे संसार का नाश आइस और फायर से ना होके बल्कि इंसान की इच्छाओं से होगा, नफरत होगा। यहाँ कभी इच्छा का मतलब फायर रखा है, ठीक है, फायर रखा है, और नफरत का मतलब आइस रखा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बाय बाय।